Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to today's daily news analysis. आज है 20 October 2024 and we're going to be seeing important articles from the Hindu, the Indian Express. So let's begin. The first article that we have today is with regard to census. So let's first discuss about the census and what the today's article talks about. There's also another explainer iske saath. So I'm going to combine both the articles and I'm going to explain it. Okay. So the first thing is census. When was the first census conducted? It was conducted in the year 1872. Okay, and this was an unofficial census. So the official census for the first time ever was conducted during the British times in 1881. ये जो unofficial census था, तभी कौन थे वाइसरॉय? It was Lord Mayo. Okay, and 1881 के टाइम पे the viceroy was Lord Ripon. Okay, so now who's the census commissioner of India back then? It was W.C. Plowden. So the first census commissioner was W.C. Plowden. अभी कौन है census commissioner? Question आ सकता है. So remember, it is Mrityunjay Kumar Narayan. ये है registrar general and census commissioner of India. कौन से ministry के अंदर काम करते हैं ये? He works under the Ministry of Home Affairs. So you have to remember these important facts. Right? Now 1951 onwards, independence के बाद every 10 years census was conducted. Census क्या होता है? Census is basically जब हम data collect करते हैं demographics को study करने के लिए, जब demographics के बारे में जानकारी लेने के लिए, जैसे कि what is the population, कितने लोग you can say के age group में कौन से लोग आते हैं, what is the sex ratio of India, what is the literacy rate of India, ऐसे सब important data हमको समझ में आता है with the help of census. And government can make important schemes and policies based on the data that we have in census, right? So this is with regard to census. Now census कौन से schedule, कौन से list में आता है? 7th schedule के कौन से list में आता है? Does it come under the state list or the union list or the concurrent list? Census comes under the union list. Okay, that is the union list, which is 69th subject. Okay, subject 69. So this is with regard to union list that it comes. So center only can make laws with regard to this. But states भी कहीं बार they bring about the surveys, है ना? वो surveys होते हैं, वो census नहीं होता. जैसे आपने सुना होगा कर्नाटका bringing about you can say census with regard to, or the survey with regard to caste 2015 में किया था. बिहार ने quite recently किया है, बिहार ने किया है 2023 में. Okay, so they can bring about data to understand that ताकि state level पे भी वो policies लेके आ सकते हैं depending on the caste based data, या उनके लिए understand करने के लिए जो उनका demographics है, they also can do this some sort of a survey. Right? तो Collection of Statistics Act के दौरान they have the power to do so. Collection of Statistics Act of 2008. Now, why are we focusing so much on census? Because there are many things linked to census. जैसे कि हम बात करते हैं delimitation. तो आर्टिकल भी बताता है कि delimitation होगा after census is conducted. What is delimitation? It is mentioned in Article 82 and Article 170. Delimitation क्या होता है? जब आप adjust करते हो number of parliamentary and legislative assembly constituencies based on the population. Okay, जैसे कि आपने state को divide किया ताकि हर जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें से इक्वल रिप्रेजेंटेशन आएगी. पॉपुलेशन के हिसाब से आपने उसको डिवाइड किया ताकि रिप्रेजेंटेशन बराबर होगी. सो ये स्टेट और लोकसभा के इलेक्शंस के लिए अलग अलग होता है. जैसे कि दिल्ली के एग्जांपल लेके, दिल्ली में यू ओनली हैव 7 कॉन्स्टिट्यूएंसीज फॉर लोकसभा, बट दिल्ली असेंबली के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली में यू हैव 70 सीट्स. ओके, 70 सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज. तो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसीज अलग होते हैं. आर्टिकल 82 टॉक्स अबाउट लोकसभा, whereas आर्टिकल 170 टॉक्स अबाउट द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. तो डिलिमिटेशन कब हुआ? पहली बार 1952 में
followed by which 1962 में, 1972 में एंड फाइनली 2002 में. तो अभी का जो हमारे पास डेटा है, it is based on 2001 census. We have not understood with regard to what is delimitation. हमने change नहीं किया after that. So 2001 का जो भी census data है, we have used it so far. And अगला जो census होगा उसके हिसाब से we are going to have the new delimitation. But जो साउथ के स्टेट्स है, they are not very happy with delimitation. Why? Because साउथ ने बहुत अच्छा काम किया है to reduce the population control measures. So they are fearing कि जब ये delimitation आएगा, साउथ के स्टेट्स के जो representation है कम होगा. Because I told you, the representation या जो constituencies बनेंगे, they will be based on population. Whereas नॉर्थ इंडिया में हम देखते हैं बहुत सारे स्टेट्स में population ज्यादा है, तो वहां पे ज्यादा मेंबर्स इलेक्ट होंगे, तो वही वो फियर करते हैं. द नेक्स्ट एस्पेक्ट जहां पे हम देखते हैं इज विद रिगार्ड टू रिजर्वेशन फॉर वुमेन. डू यू रिमेंबर द अमेंडमेंट एक्ट फॉर रिजर्वेशन ऑफ वुमेन? दैट इज 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था. 128th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, जहां पे कितना परसेंट रिजर्वेशन दिया है महिलाओं को? 33%. ओके, द रिजर्वेशन इज गिवन both in legislative assembly as well as Lok Sabha elections. Okay, तो 33% यहाँ पे है. अभी कितना है हमारा representation? It is only 13.6%, right? तो इसको हमको बढ़ाना है. और ये भी जो reservation होगा, this will be after they do the census. Okay, तभी हम अगले elections में we are going to ensure that we are going to see कि reservation will be given based on the exact and the current data that we have coming from the census. So ये दो चीजें. अपार्ट फ्रॉम दैट हम देखेंगे 16th फाइनेंस कमीशन. फाइनेंस कमीशन का काम क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूट द रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, राइट? तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनागरिया, राइट? तो इनका जो काम होगा मेनली टू डिस्ट्रीब्यूट. सो नाउ दे विल बी ओनली बेस्ड ऑन टू डिस्ट्रीब्यूट जब उनको पॉपुलेशन का करेक्ट डेटा मिलेगा, राइट? दे विल बी एबल टू give the resources adequately for those states. So that is what will happen जब census होगा, because a lot of things are dependent on it. अगर हम caste census की बात करते हैं, the last अगर caste census 1881 में was counted, caste was counted. caste का मतलब है यहाँ पे वो चेक करेंगे आप कौन से caste से हो, जाति से बिलोंग करते हो. So of course there are मांग उठ रही है कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे नहीं होना चाहिए, पर हम पहले ही करते थे. तो 1881 में we had taken caste and this was continued till 1931. Okay, but 1931 के बाद ये बंद हुआ. फर्दर हम देखते हैं कि 1951 में we excluded noting or doing caste census. We only took SC और ST का डेटा, बट बाकी के कास्ट का हमने पूछा भी नहीं, हमने डेटा भी नहीं लिया. Why do we do that? डेटा क्यों नहीं लिया? It's because it will strengthen caste identities, right? On the other hand, लोग कहते हैं कि yes, ताकि हम अच्छे पॉलिसीज उन कास्ट के लिए लेकर आए, है ना? लेकिन उसके लिए तो SC ST का डेटा तो हम लेके ही आते हैं. So here now the question lies कि क्या अभी का जो सेंसस होगा वहां पे हम कास्ट सेंसस लेके आएंगे या नहीं. लास्ट 2011 में भी कास्ट सेंसस हुआ, बट इसका डेटा इट्स नॉट मेड पब्लिक. तो 2011 में कास्ट सेंसस हुआ, यस, बट इट इज नॉट मेड पब्लिक. तो ये आपको जानना जरूरी है. So that is all with regard to this article. We have combined all the articles and discussed. Let's proceed to the next article. अगला आर्टिकल है फर्टिलाइजर से लेके. So now very interesting facts आते हैं इस particular article से. So let us see. What is a fertilizer? Fertilizer is basically a chemical product that is essentially used as a plant nutrient. Plant के growth के लिए आप fertilizers का इस्तेमाल करते हो, right? Now यहाँ पे of course it has a very important role in agriculture. और आपको तो पता ही है जो agriculture में इंडिया, okay, it's mainly agrarian. हमारा 45% of the population अभी भी agriculture पे rely करता है. Okay, and agriculture को प्रोडक्टिव लाने के लिए, उसका जो यील्ड बढ़ाने के लिए फर्टिलाइजर्स ऑफ कोर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. नाउ व्हाट इज द केस हियर इज, हम ज्यादा फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं जिसके कारण सॉइल का जो फर्टिलिटी है ये कम होता है. दैट इज ऑफ कोर्स वन ड्रॉबैक ऑफ यूजिंग एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स. पर अगर आप सही मात्रा में आप इस्तेमाल करोगे देन इट इज वेरी गुड फॉर द क्रॉप्स.
अभी फर्टिलाइजर्स जो है बेस्ड ऑन द न्यूट्रिएंट्स, ये दो तरीके के होते हैं. फर्स्ट इज योर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड द सेकंड इज द माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम से पता चलता है समथिंग दैट इज रिक्वायर्ड इन अ लार्जर क्वांटिटी. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये पूरे जो है these are nutrients that are required in larger quantities, okay, greater amounts for the soil, for the crops. However, micronutrients आपको बस छोटी मात्रा में, कम मात्रा में जरूरत है, जैसे कि we can discuss about iron, zinc, copper, manganese, chloride or chlorine. Okay, so all of these are smaller nutrients. That's why it's called as micronutrients, required in small amounts. इसमें से जो NPK होता है, that is supposed to be very very important. That is nitrogen, phosphorus and potassium. और इसका अगर balanced fertilizer की आवश्यकता है, the ratio is 4:2:1. This is the balanced nutrients. How much components you require? Ratio proportion में कितना चाहिए आपको? 4:2:1. Okay. Now in this आप देखते हो कि 4, दैट मीन्स N जो है, जी N या नाइट्रोजन या यूरिया जो है, ये ज्यादा मात्रा में, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन में हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, इट्स मोर कंज्यूम्ड इन टर्म्स ऑफ इन इंडिया. ओके, ज्यादा डिमांड होता है इसका, ज्यादा इसका यूज होता है. इनफैक्ट अगर आपने रिसेंटली करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ा हो, यू विल नो दैट हम बैन करेंगे इनका इम्पोर्ट by 2025. India is planning to ban the import by 2025. In fact, because India is a largely agrarian country, India जो है, इसका रैंक है second in terms of consumption in fertilizers. हम ज्यादा कंजम्पशन कर रहे हैं, लेकिन क्या हम ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं? The answer is no. प्रोडक्शन ज्यादा नहीं हो रहा है, हम कंजम्पशन ज्यादा कर रहे हैं और हमारा डिमांड भी ज्यादा है, राइट? जिसके कारण हमको इंपोर्ट करना पड़ता है. वी आर रिलाइंग ऑन इंपोर्ट्स, राइट? सो हियर यू विल सी दैट जो यूरिया है हम इंपोर्ट करते हैं, 20% इंपोर्ट्स लेते हैं. जो हमारा पोटेशियम है, ओके, इट्स कॉल्ड डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हैं जिससे हम पोटेशियम मिलता है. सो DAP या डाई अमोनियम फॉस्फेट हम 50 to 60% इंपोर्ट करते हैं. एंड फॉलोइंग बाय विच जो पोटैश है, ओके, म्यूरिएट ऑफ पोटैश प्रोडक्ट है K, ओके, पोटेशियम, ये तो 100% हम इंपोर्ट पे रिलाई करते हैं. सो हियर यू कैन सी दैट ऑल्दो यूरिया इज स्टिल इजीली फाउंड, नाइट्रोजन तो इजीली फाउंड है, लेकिन बाकी के दो हम इंपोर्ट्स पे रिलाई करते हैं. सो हियर ऑफ कोर्स विल लीड टू व्हाट? इंक्रीज इन प्राइजेस, है ना? अगर इंपोर्ट्स कम हुए तो इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे. और अभी ऐसा हो रहा है कि जो यूक्रेन और गाजा में कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से देयर हैज बीन प्रॉब्लम्स, ओके, देयर हैज बीन प्रॉब्लम्स विद रिगार्ड टू स्कैर्सिटी एंड ऑफ कोर्स इंक्रीज यू कैन से डिमांड. सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं, कंजम्पशन इज अबाउट 55 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ फर्टिलाइजर्स. But अभी because of the uncertainty, this has had repercussions. Because हम रशिया से और वेस्ट एशिया से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करते हैं फर्टिलाइजर्स को. कहाँ से? रशिया, एंड वी हैव वेस्ट एशिया. So that has led to problems and these are the challenges that India will face. So what is India doing? इसका solution क्या है? हमने क्या क्या किया है? हमने किया है यूरिया प्लांट्स, ओके. सो खुद से आत्मनिर्भर होके, सेल्फ रिलायंट होके खुद से हमने प्रोडक्शन स्टार्ट किया है यूरिया प्लांट्स दैट हैव बीन सिंस 2012. अभी तो और भी कुछ 12 नए प्लांट्स हमने खड़े किए हैं. सो यूरिया प्लांट्स इज वन सच वे दैट वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हमारे में यहाँ पे सप्लाई कम नहीं होना चाहिए, राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट हमने क्या किया है? हमने सस्टेनेबल फार्मिंग पे ज्यादा फोकस की. दैट मीन्स reducing chemical fertilizers, जैसे कि अभी हम ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं. एंड विच इज द स्टेट दैट हैज 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग? 100%. जहां पे किस स्टेट ने बैन किया है फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स? दैट इज सिक्किम. तो ऐसे
स्टेट्स के एग्जाम्पल से हम यहाँ पे कोशिश करना चाहते हैं कि फर्टिलाइजर्स का कम से कम इस्तेमाल हो, बट यूज मोर ऑफ नेचुरल फर्टिलाइजर्स, नेचुरल थिंग्स रादर देन केमिकल्स. एंड फाइनली हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, अलाउइंग एफडीआई इन दिस पर्टिकुलर रिगार्ड. तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन भी फर्टिलाइजर्स का बढ़ाना चाहते हैं ताकि वी आर नॉट रिलायंट ऑन द इम्पोर्ट्स. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द आर्टिकल with regard to the fertilizers and the imports and the challenges that India faces. Let's see the next article. अगला article है burgeoning expenditure of elections. So this is with regard to election expenditure. तो अभी आपको पता ही है कि USA में भी elections हो रहे हैं, and it is estimated कि USA में $16 billion का expenditure हो रहा है elections में, which is about 1,36,000 crore रुपीस. इतना ज्यादा. चौंकाने की बात यह है इंडिया में भी 1 लाख करोड़ एक्सपेंडिचर हुआ है बिकॉज ऑफ द जनरल इलेक्शंस अलोन. ओके, कितना एक्सपेंडिचर पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है. सो नाउ दिस गेट्स अस टू द क्वेश्चन ऑफ हाउ आर एक्सपेंडिचर्स ऑफ इलेक्शंस स्क्रूटिनाइज्ड, हाउ आर दे डन, कितना उनका लिमिट है, समझते हैं. So here we have the election expenditure limit for candidates, which is 95 lakhs per Lok Sabha constituency अगर वो larger state है, 75 lakh का limit है अगर वो छोटा state है, smaller state है. Similarly, if a legislative assembly, the larger, अगर जो legislative state के elections होते हैं तो 40 लाख होता है बड़े states के, 28 lakhs for smaller states. Again, this is with regard to candidates का limit. क्या पॉलिटिकल पार्टीज का लिमिट है? The answer is no. There are no limits on expenditure. तो यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज जितना भी एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, बट कैंडिडेट्स का यहाँ पे यू कैन से लिमिट रखा गया है. So let's understand this. What are the laws that are governing elections with regard to expenditure elections? तो पहला जो लॉ है, we have Representation of People's Act of 1951. तो यहाँ पे इन्होंने लिमिट नहीं किया था एक्सपेंडिचर्स, बट दे टोल्ड द कैंडिडेट्स को मेंटेन करना पड़ेगा एक्सपेंडिचर अकाउंट्स. ओके, नॉट फॉर पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स को करना पड़ेगा बट नॉट पॉलिटिकल पार्टी. सो दिस इज द फर्स्ट एक्ट दैट टॉक्स अबाउट रेगुलेटिंग द एक्सपेंडिचर. उसके बाद वी हैव द इलेक्शन लॉ, इलेक्शन एक्ट 2003 वाला. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि आपको अगर 20,000 से ज्यादा मिल रहा है, 20,000 रुपीज ज्यादा किसी ने आपको कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, आपको डोनेशन या कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, आपको ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, बिफोर फाइलिंग फॉर एनी टैक्स, इनकम टैक्स अथॉरिटीज, बिफोर सबमिटिंग द रिपोर्ट्स देयर. ओके, तो जो भी आपको 20,000 से ज्यादा डोनेशंस दे रहे हैं वो आपको इलेक्शन कमीशन में देना होगा ताकि ट्रांसपेरेंसी बना हो. राइट. द थर्ड एक्ट टॉक्ड अबाउट कंपनीज एक्ट 1956. यहां पे बोला था कि जो कॉर्पोरेट्स है, कंपनीज है, जो भी डोनेशंस देते हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज, दे कैन ओनली गिव 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years, एक्सीड नहीं कर सकते. तो कितना परसेंट वो अलाउ कर लिया है? 5% ऑफ द प्रॉफिट्स पिछले 3 years के. FCRA in fact prohibited political parties to get funding from foreign sources, right? Because this can affect directly the integrity, sovereignty of India, because आपको बाहर से funding आ रही है, right? So यहाँ पे FCRA talk political parties cannot, but NGOs और सब को funding मिल सकता है, but not political parties. And finally, the Income Tax 1961 Act. यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज को फंडिंग्स मिलता है, कॉन्ट्रीब्यूशंस है, दे आर डिडक्टेबल. तो इनको यहाँ पे इनकम टैक्स में कुछ रिबेट डिडक्शंस हो सकता है. जो भी आप फंडिंग देते हो, उनको कॉन्ट्रीब्यूशन देते हो, यू कैन गेट सम डिडक्शंस, रिबेट्स मिल सकते हैं आपको जो भी कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं. राइट. सो दिस इज विद रिगार्ड टू द लॉज. वी हैव कमिटीज ऑल्सो. तो अगर पूछेंगे कि इंदिराजीत गुप्ता कमिटी किससे रिलेटेड है, दिस इज टॉकिंग अबाउट स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस. What do you mean by state funding of elections? State funding talks about partial funding of the government. Government आपको कुछ रिसोर्स देगी in terms of elections.
ओके, ताकि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बनाए हो, ताकि यहाँ पे लेवल प्लेइंग फील्ड बना हो, ताकि जो डिसएडवांटेज पॉलिटिकल पार्टीज हो, जिसका ज्यादा मसल या मनी पावर नहीं होता, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. Okay, so what is the aim? Why are we discussing all of this? Because why is election funding very important to understand? Because ये allow करता है एक level playing field, ये allow करता है जो influence है wealth का, पैसों का, ये कम से कम हो, minimize हो, right? As well as दूसरे का जो you know you can say political parties, ये भी elections पे उतर आए. They also should get entry. उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए बिकॉज अगर आप रिच हो, अगर आपके पास पैसे हो तो ही आप इलेक्शंस लड़ सकते हो, राइट? सो टू इंश्योर ऑल ऑफ दिस, दैट इज व्हाई द इलेक्शन फंडिंग को मैनेज करना बेहद जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे वी सीन अबाउट द वेरियस रीजंस विद रिगार्ड टू लिमिट. क्या है इंडिया में, ये कैंडिडेट पे होता है, यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज में नहीं होता. तो ये भी कहा गया है कि पॉलिटिकल पार्टीज में यहाँ पे एक लिमिट होनी चाहिए. इट शुड नॉट बी ऑन कैंडिडेट्स. व्हाई सो? व्हाई दे सेइंग दैट? बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज को अगर एक क्राइटेरिया होगा कि इतना ही खर्च कर सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी मोर ट्रांसपेरेंट, मोर लेवल प्लेइंग फील्ड एज टू कैंडिडेट्स. जो वेल्दी कैंडिडेट्स है, जिसके पास वेल्दी कैंडिडेट्स है, वो ही वो 95 लाख तक पहुंच जाएंगे, है ना? सो वी शुड से दैट टू क्रिएट अ बेटर अपॉर्चुनिटी. राइटर भी यहाँ पे बता रहे हैं कि दे शुड ऑल्सो think about, should we have political parties pay a funding limit, okay, an expenditure limit. So this is all with regard to that. Yahan pe you should know the expenditure limits also of the various candidates in Lok Sabha and state legislative assemblies. Let us proceed to the next article. Okay, अगला आर्टिकल बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. स्पेनिश या स्पेन के प्राइम मिनिस्टर, दैट इज पेड्रो सांचेज, ही इज कम टू इंडिया, वडोदरा में है. तो ये लॉन्च किए हैं या इनॉग्रेट किया है यू कैन से एयरक्राफ्ट फैसिलिटी, अ प्राइवेट एयरक्राफ्ट फैसिलिटी. और प्राइवेट कंपनी कौन सी है यहाँ पे? इट इज द टाटास. ओके, सो टाटास के वी हैव C295 एयरक्राफ्ट का यहाँ पे प्रोडक्शन किया जाएगा along with a Spanish company which is the Airbus. ठीक है, तो यहाँ पे बस एक वन लाइनर जैसे आपको याद रख लेना है. पेड्रो सांचेज एंड नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट प्राइवेट मिलिट्री एयरक्राफ्ट प्लांट. तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन किया जाएगा. कहाँ पे? वेयर इज दिस लोकेटेड? इट इज लोकेटेड इन गुजरात. ओके, एंड टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स नाम है इस कॉम्प्लेक्स का, इस प्लांट का. C295 aircraft is the name. It is in collaboration with Airbus Spain. So that is all with regard to this article. Proceeding to the next, which is again a state related article. State government, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने? ओडिशा ने यहाँ पे एक लॉन्च किया है प्रेजर्वेशन ऑफ टेम्पल्स के लिए स्कीम. जो फेमस टेम्पल जहाँ पे यू मस्ट हैव हर्ड, भुवनेश्वर में एंड जगन्नाथपुरी, बहुत इन फेमस टेम्पल्स हैं यहाँ पे. तो उनके देखरेख के लिए, उनके रेनोवेशन के लिए, वहाँ पे मठ्स, उनका जो डेवलपमेंट के लिए, प्रेजर्वेशन के लिए यहाँ पे उन्होंने फंड्स प्रोवाइड किया है. सो दिस स्कीम विल बी कॉल्ड एज देवालया. ठीक है, तो यहाँ पे देवालया का मतलब है टेम्पल. So this is a small one-liner that you have to remember for your exam. Proceeding to the next article, which is Tamil Nadu ने declare किया है heat waves as state-specific disaster. Now let's understand, जो heat wave है, it is not a notified disaster according to the center. तो ये अगर पूछेंगे कि कौन से स्टेट ने इसको डिक्लेयर किया है एज अ स्टेट स्पेसिफिक डिजास्टर, इट इज तमिलनाडु. ओके, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो भी मृत्यु हो गई है जिन लोगों की बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स, उनके फैमिली को 4 लाख रुपए दिए जाएंगे. ऑलराइट, सो इंक्लूडिंग इन एनी अदर रिलीफ ऑपरेशंस के अलावा 4 लाख रुपए दिया जाएगा. सो इन टर्म्स ऑफ द सेंटर, कौन सा एक्ट है दैट टॉक्स अबाउट डिजास्टर मैनेजमेंट? यस, इट इज द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005. Disaster Management Act 2005. Who is the ministry that looks after the total disaster management related activities?
इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. ठीक है, तो अगर मिनिस्ट्री पूछा, इट इज द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. Disaster Management Act में we also have the NDMA, which is a nodal agency, a nodal body that looks after the disaster related activities. That is National Disaster Management Authority. ये अथॉरिटी जो है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये कौन हेड करते हैं? इट इज द प्राइम मिनिस्टर दैट हेड्स. प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ दिस अथॉरिटी, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है. ओके, डिजास्टर ऑपरेशंस में रिलीफ के लिए कितना फंड्स होना चाहिए, कैसे एक्ट करना चाहिए, ये बॉडी डिस्कस करती है, प्लान बनाती है, पॉलिसीज देती है. सो देयरफॉर यू हैव दिस बॉडी दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो वी हैव द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005. इन्होंने हीट वेव्स बताया नहीं है एज अ डिजास्टर, बट दूसरे जो यू कैन से लाइक फ्लड्स है, ड्राउट्स है, सुनामीज एंड साइक्लोन्स, वो सब डिजास्टर में आते हैं, बट हीट वेव इज नॉट नोटिफाइड. तो ये आपको याद रखना है. Let us proceed to the next article. अगला आर्टिकल है जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी के बारे में, who recently passed away. तो यहाँ पे हम देखते हैं why are we studying or why are we reading, because he has been a very important person. Mainly जो हम right to privacy कहते हैं, right? ये जो Act 21 के अंदर आया, it is because of him, credits to him. So let us understand इनका जो रोल रहा है. So you must have heard of Puttaswamy, retired Puttaswamy versus Union of India case. तो यहाँ पे आपको पूछ सकते हैं, it is related to what? It is related to right to privacy. Okay? तो ये कर्नाटका के हाई कोर्ट रह चुके हैं, हाई कोर्ट जज रह चुके हैं, एंड यहाँ पे when he was 86 years old, that is in 2012. ओके, जब इन्होंने चैलेंज किया था आधार स्कीम. ओके, जो आधार स्कीम है जहां पे आपका डेटा गवर्नमेंट के पास होगा, सो ये बायोमेट्रिक डेटा और सब, सो दे हैड चैलेंज दिस पर्टिकुलर बिकॉज ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि इसको लेजिस्लेटिव बैकिंग नहीं है, यहाँ पे पूरा जो हमारा डेटा है ये खतरे में है. इट इज अवेलेबल, इजीली अवेलेबल टू द गवर्नमेंट एज वेल, राइट? सो इसी केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट heard the case of right to privacy. क्या citizens के पास ये अधिकार है? Do they have the fundamental right to keep our data private? And that is when in 2017, okay, the right to privacy was then made as a fundamental right, an intrinsic part of right to life and liberty. Okay, right to life यानी कि आर्टिकल 21 के अंदर right to privacy was made a very important crucial life. ये जो है 9 जज बेंच केस में verdict declare किया गया था. So this is how he has been, even though age उनका 96 years थी, he did not stop in making sure that हमारे जो rights है, citizens के rights है, to check the executive action, इसको कंट्रोल में लेके आने के लिए he still, even when he was retired, he did fight for it. And therefore it is quite remarkable, और इनके जो efforts हैं ये हमको याद करने होंगे. So this is with regard to K.S. Puttaswamy, and he died at the age of 98. Remarkable. Let's see the next article. Next article is with regard to Center warns against illegal digital payment gateways. तो यहाँ पे आपने सुना होगा एक वर्ड, म्यूल बैंक. What is a mule bank accounts? जैसे कोई इलीगल पैसा किसी और के थ्रू आप भेज रहे हो, राइट? किसी और बैंक अकाउंट के थ्रू आप भेज रहे हो, उसको हम म्यूल बैंक अकाउंट्स कहते हैं, म्यूल मनी ट्रांसफर कहते हैं. तो यहाँ पे आईएफओसी ने कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस जारी किया है. वहां पे बोला है कि वी शुड लुक आफ्टर अगेंस्ट इलीगल पेमेंट गेटवे जो म्यूल बैंक अकाउंट्स के हैं, ये हमको चेक करना है. जो मेनली ट्रांस बॉर्डर या ट्रांस नेशनल क्राइम्स के लिए मनी लॉन्ड्रिंग फैसिलिटेट करता है, इसको रोकना चाहिए. यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अबाउट आईएफओसी, तो क्विकली रिवाइज करते हैं. नाउ दिस वाज अडॉप्टेड इन 2018. आईएफओसी का फुल फॉर्म है इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर. इंडी के फाउंडेशन दिन के दिन पे हमारे जो होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, इन्होंने 4 स्कीम्स लॉन्च किए थे. Now, I want you to write which are the 4 schemes, because ये recent वाले हैं, पिछले ही महीने के हैं. So I want you to tell me what are the 4 schemes that are launched by the Minister of Home Affairs on the foundation day of the I4C.
ओके तो यहाँ पे आपको आंसर करना है. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर ये आता है, मेनली टू डील विद साइबर क्राइम्स, कोऑर्डिनेशन करके. सो इट हेल्प्स कोऑर्डिनेटिंग विद ऑल द अदर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, स्टेक होल्डर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स, इनके साथ कोऑर्डिनेट करके इट विल हेल्प टू काउंटर और कॉम्बैट साइबर क्राइम. और यहाँ पे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? न्यू दिल्ली. इंडिया का रैंक विद रिगार्ड टू साइबर क्राइम इंडेक्स क्या है? वी आर रैंकिंग 10th. The first country ranked is Russia. तो ये आपको कुछ डेटा साइबर क्राइम से रिलेटेड पता होना चाहिए. Let us proceed to the next article. The next article is with regard to MIDH guidelines. Okay, now MIDH ये क्या है? This is a scheme. Okay, what is the scheme? Mission for Integrated Development of Horticulture. So this is a central sponsor scheme, यानी सेंटर और स्टेट दोनों यहाँ पे जॉइंटली कोलैबोरेट करते हैं. 60-40%. तो 60% सेंटर देता है, 40% स्टेट देता है. फॉर व्हाट? फॉर हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? हॉर्टिकल्चर टॉक्स अबाउट द कल्टिवेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वेरियस अदर मशरूम, स्पाइसेस, फ्लावर्स, ओके, कैश्यू, जो क्रॉप्स में हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ओके, जो वेजिटेबल्स जैसे काउंट करते हैं, उनके लिए वी टॉक अबाउट द हॉर्टिकल्चर. सो दिस इज विद रिगार्ड टू फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स मेनली, राइट. सो यहाँ पे कौन सी मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर का ही करेगा, राइट, हॉर्टिकल्चर. सो दिस इज विद रिगार्ड टू दैट. यहाँ पे क्या अभी नया कुछ चीज हो रहा है? वी आर रिवाइजिंग द प्रोसेस, वी रिवाइजिंग सम गाइडलाइंस. तो अभी गाइडलाइंस आए नहीं है, वी विल सी व्हाट इज गोइंग टू बी. सो यहाँ पे एक वर्ड है हाइड्रोपोनिक्स एंड एक्वापोनिक्स. सो यू जस्ट हैव टू नो व्हाट इज दिस टर्म. हाइड्रोपोनिक्स इज बेसिकली जहां पे पानी के थ्रू प्लांट्स ग्रो करते हैं, ओके, प्लांट्स दैट आर ग्रोइंग इन वाटर. बट एक्वापोनिक्स क्या है? एक्वापोनिक्स इज बेसिकली कंबाइनिंग टू थिंग्स. एक है एक्वाकल्चर एंड हाइड्रोपोनिक्स. एक्वाकल्चर यानी कि जो फिश का ग्रोथ है, फिशरीज जो है, तो फिश और प्लांट्स दोनों साथ में ग्रो होते हैं, जिसके कारण जो फिश जो वेस्ट मटेरियल देता है, उस वेस्ट मटेरियल से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं. So that is a combination of aquaculture and hydroponics, right? So this is some components we are seeing. ऐसे पूछ सकते हैं terminologies, तो आपको वही कुछ आइडिया होना चाहिए. There's also one institute for horticulture. पूछ सकते हैं कहाँ पे है? This is in Nagaland, Medizip Hima. Okay, very important. You can remember this name. And अगर पूछेंगे who's the father of Indian horticulture, that is M.H. Marigauda. तो ये आपको ध्यान में रहना, कुछ facts for your exam. Right, now let's proceed to the last article of the day with regard to greenhouse gas levels. तो WMO यानी कि the World Meteorological Organization ये कहता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं ये बढ़ रहे हैं. They are surging in 2023. कितना? 2 ppm which is parts per million. इतना वो बढ़ गया है. कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेज जो गैसेज होते हैं that trap the sun's heat, जिसके कारण अर्थ का जो टेम्परेचर है ये और भी बढ़ता है, राइट. दैट इज योर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट. एंड ये जो ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट और भी ज्यादा हुआ है बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, जिनके कारण हमने कोल, फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल करके और भी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसेज एनवायरमेंट में डाले हैं. तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कहता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि ये ग्रीन हाउस गैसेज का लेवल्स ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, राइट. सो यहाँ पे WMO के बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं. WMO was formed in the year 1950. ये एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है. इनके पहले we also had the Indian Meteorological Organization. Okay, ये इंडियन मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, बट दिस इज अ सक्सेसर ऑफ दैट. और ये जो बॉडी है, दिस इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द UN. इनका हेडक्वार्टर्स है जिनेवा में, right? So this really helps in getting us the data, reporting करने में with regard to greenhouse gases and global warming. ये important data है. Apart from that, जो अलग अलग agencies हैं forecasting से related, meteorology से related, weather and climate से related, इसको coordination और सब मदद करता है WMO. एक और एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का है कि हमारे जो प्लान है टू टारगेट क्लाइमेट चेंज,
ये थोड़ा कम है. नेशनल प्लान्स जो हर कंट्री ने कुछ प्लान्स दिए हैं. यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ द नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस. हमने पेरिस अग्रीमेंट के थ्रू दैट हैपेंड इन COP21 2015, पेरिस में जब हुआ था, हमने अपने प्लेजेस दिए थे. तो ये यूएन कह रहा है, यूएन रिपोर्ट कह रहा है कि अभी तक हम कट कर चुके हैं बस 2.6% फ्रॉम द 2019 लेवल्स. और अगर हमको 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट अचीव करना है, we need to ensure emission cut 43% होना चाहिए by 2030 and 60% by 2035. तो इतना ज्यादा हमको एमिशन कम करना है. तो ये बस ये कह रहा है कि हमारे जो प्लान्स है ये काफी नहीं है, उसको और भी रिगरसली मदद करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है, ताकि वी विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू कॉम्बैट दिस 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट. इंडिया के वैसे टारगेट्स क्या है एनडीसी के? आपने सुना होगा 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी पे इस्तेमाल करेंगे बाय 2030, राइट. बट दे आर सेइंग कि ये जो टारगेट है ये थोड़ा सुपरफिशियल है, उसको और भी ज्यादा करना चाहिए, अदरवाइज वी विल नॉट रीच अ टारगेट. एनीवे, बट ये हमारा टारगेट है तो इसको हम जान लेते हैं. इसके अलावा 45% ऑफ द एमिशन इंटेंसिटी, राइट, एमिशंस जो हो रहे हैं 45% इंटेंसिटी इसका कम करना है फ्रॉम 2005 लेवल्स, अगेन बाय 2030. 50% का जो हमारा एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, दिस शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स. अभी हम कोल पे रिलाई करते हैं, अभी हम फॉसिल फ्यूल पे रिलाई करते हैं. तो अभी ये कह रहा है कि 50% जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, दिस शुड कम फ्रॉम नॉन फॉसिल या रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड, हाइड्रो एंड एक्सेट्रा. तो ये थे हमारे UNDCs. And that's all with regard to today's article. I hope you've understood whatever we've discussed and all important articles. See you in the next time. Thank you.